वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। स्क्रीन पे किताब दिख रही है? जी थोड़ा सा रीड करा तो उसको। Shahid had a sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical. Once I accompanied Iqbal, his brother, and Hina, his sister, on a trip to fetch him home from hospital. This was on 21 May. By that time, he had already been through several unsuccessful operations. Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain. रिलाइव नहीं है, His head रिलीव है, रिलीव LIE हो गया, relieve the pressure on his brain. His head was shaved and the shape of the tumor was visible upon his bare scalp. L को साइलेंट कर दे, bare scalp. Its edges outlined by metal sutures. When it was time to leave the ward, a blue uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. Shahid waved him away, declaring that he was strong enough to walk out of the hospital on his own. But he was groggier than he had thought, and his knees buckled after no more than a few steps. buckled after no more than a few steps. Iqbal went running off to bring back the wheelchair while the rest of us stood in the corridor, holding him upright. At that moment, leaning against the chairless hospital wall, a kind of rapture descended on Shahid. When the hospital already returned with the wheelchair, Shahid gave him a big beaming smile and asked the wheelchair where he was from. Ecuador, the man said, and Shahid clapped his hand gleefully together. Spanish, he cried at the top of his voice. I always wanted to learn Spanish just to read Lorca. Shahid's graciousness had no limit. There was never an evening when there wasn't party in the living room. I love it that so many people are here, he told me once. I love it that people come and there is always food. I love this spirit of festivity. It means that I don't have time to be depressed. Yes. His apartment was सलमान फारसी, आगे पढ़िए।
His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of the newly renovated building. There was a governess study on the top floor and a wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline. Manhattan skyline across the East River. Shahid loved this view of the Brooklyn waterfront, slipping जी like a guard into the East River under the glittering lights of Manhattan. The journey from the foyer building foyer of the Shahid's building to his door was a voyage between continents. On the way up, the rich fragrance of Rogan Josh and Josh and Hart. Rogan Josh and Hawk would invade the door. Gray interior of the elevator against the background of the songs and voices that were always in echoing out of his apartment. echoing out of his apartment. Even the ringing of the doorbell had an oddly musical sound. Suddenly, Shahid would appear, flinging open the door, releasing a great cloud of heat releasing a great cloud of heat into the frosty New York air. Oh, how nice! He would cry, clapping his hands. How nice that you have come to see your little moms live. Invariably, there had been some half dozen or more people gathered inside. Poets, students, writers, relatives, and in the kitchen, someone would always be cooking or making tea, almost to the very end, even as his life was being consumed by his these is deeds. He was the center of the perpetual carnival, an endless mela of talk, laughter, food, and of course poetry. Okay. No matter how many people. Okay. Shahid had a sorcerer ability to transmute the mundane into a magical. ऊपर के पैराग्राफ में देखा था कि लोग एक जगह जमा होते थे और आपस में सोशल एक्टिविटीज या कुछ गुफ्तगू होती रहती थी। आगे फिर शाहिद की खूबी बयान करते हुए राइटर लिखते हैं, हाय शाहिद हैड अ सोर्सरर एबिलिटीज। सोर्सरर एबिलिटीज मतलब साहिराना सलाहियत, जादुई सलाहियत। जैसे जादूगर अपने जादू के करिश्मा से कुछ करके दिखला देता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी करिश्माती सलाहियत थी। तो शाहिद हैड अ सोर्सरस एबिलिटी, शाहिद के अंदर जादुई सलाहियत थी। ट्रांसम्यूट द मंडेन, मंडेन मतलब आम चीज को बदलने की जादुई सलाहियत थी इनको मैजिकल जादुई चीज में। तो शाहिद को किसी आम चीज को जादुई शक्ल में बदलने की सलाहियत थी। आगे एक वाकया नकल करते हैं, वंस आई accompanied इकबाल his brother and Hena his sister on a trip to fetch him home from hospital। एक मर्तबा मैं शाहिद के भाई इकबाल और उसकी बहन हिना के साथ हॉस्पिटल से शाहिद को लाने के लिए गए।
ऑन अ ट्रिप का मतलब मुख्तसर सा सफर। तो एक मर्तबा मैं शाहिद के भाई इकबाल और उसकी बहन हिना के साथ हॉस्पिटल से उसे लाने के लिए गए। दिस वाज ऑन 20 मई, ये वाकया 21 मई का है। By that time he had already been through several unsuccessful operations. उस वक्त तक उसके कई ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन सारे ऑपरेशन की हालत क्या थी? अनसक्सेसफुल थे। तो नाकामयाब कई ऑपरेशन उनके हो चुके थे, यानी उनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain. एक मरतबा फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। He was back in hospital, वापस दोबारा हॉस्पिटल में आए थे, इसलिए टू अंडरगो मतलब टू सर्जिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन के लिए, जिस ऑपरेशन का मकसद क्या था? दैट वाज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन, उसके दिमाग में जो ट्यूमर का प्रेशर था उससे आराम देने के लिए ये ऑपरेशन कराना था। तो सर्जिकल ऑपरेशन, उनको हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गए थे, जिस ऑपरेशन का मकसद उनके ब्रेन या उनके दिमाग के दबाव को कम करना मकसद था। हिज हेड वाज शेव्ड, क्या माना होगा? हिज हेड वाज शेव्ड। शेव मतलब काटना, बाल कटवाना। बाल वगैरह छील देना। हिज हेड वाज शेव्ड, उसके सर के बाल छील दिए गए। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वाज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प। इसका मतलब सर का जो पिछला हिस्सा होता है उसको कह सकते हैं आप, या माना आप हेड ही कर लें। तो उसके सर के बाल को छील दिया गया। एंड द शेप ऑफ ट्यूमर, और ट्यूमर का जो शेप, उसकी सूरत या शक्ल जो थी, वाज विजिबल, वो दिखाई दे रही थी, अपॉन हिज बेयर स्कैल्प, उसके नंगे सर पे, मतलब बगैर बाल के सर पे। इट्स एजेस आउटलाइन बाय मेटल स्यूटर, स्यूटर मतलब सिलाई होता है। तो जो ऑपरेशन जब करते हैं तो उसमें खास एक मादे की धागे होते हैं, उसी से उसको सिल दिया जाता है। तो उसी कह रहे हैं, जिसको काटा काटा देना बोलते हैं। तो इट्स एजेस आउटलाइन बाय मेटल आउटलाइन, जो ऑपरेशन के बाद जो उस पे काटा या सिलाई की गई थी उसको दिखाई दे रहा था। When it was time to leave the ward, और उस ऑपरेशन के बाद जब हॉस्पिटल के वार्ड या हॉस्पिटल के रूम को छोड़ने की बारी आई, तब ब्लू यूनिफॉर्म हॉस्पिटल स्कॉट अराइव विद अ व्हीलचेयर। तो हॉस्पिटल का एक मददगार, जिसको आप नर्स कहते हैं लड़कों को, और जो लड़का होगा वो वार्ड बॉय होगा। जो कहते हैं उस वार्ड बॉय एक ब्लू यूनिफॉर्म में, यानी ब्लू कपड़ा में पहने हुए एक हॉस्पिटल का मददगार अराइव्ड, आया विद अ व्हीलचेयर लेकर। शाहिद मूव्ड हिम अवे, जब व्हील चेयर लेकर के आया और इस वक्त इनका ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन की हालत में क्या करते हैं? शाहिद वेव हिम अवे, शाहिद ने उससे अलग होने के लिए कहा। डिक्लेयरिंग दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ओन, ये बताते हुए, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो खुद से ही हॉस्पिटल से बाहर जाने की, हॉस्पिटल से टहल कर, वो वॉक करके, चल करके जाने के वो काबिल है। दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक, वो चलने के लिए काफी मजबूत हैं आउट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बाहर के रास्ते पे, ऑन हिज ओन, खुद से। बट ही वाज ग्रोगियर देन ही हैड फाउंड, लेकिन जितना वो सोचते थे उससे कहीं ज्यादा वो क्या थे? ग्रोगियर मतलब वीकर, कमजोर। बट ही वाज ग्रोगियर देन ही हैड फाउंड, लेकिन जितना वो सोचते थे अपने बारे में उससे कहीं ज्यादा वो कमजोर थे। एंड हिज नीज बैकल आफ्टर नो मोर देन फ्यू स्टेप, और चंद कदम चलने के बाद उनके घुटने मुड़ गए या झुक गए। इकबाल वेंट टर्निंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर, और जब ये कंडीशन देखा शाहिद की, तो इकबाल जो उनका भाई था, वो भाई व्हील चेयर लेने के लिए दोबारा हॉस्पिटल में वापस गए। वाइल द रेस्ट ऑफ अस, जबकि बकिया हम में से और जो लोग थे, बहन और हम,
द रेस्ट ऑफ अस, हम में से बकिया लोग, स्टूड इन द कॉरिडोर, बरामदे में खड़े थे, होल्डिंग हिम अपराइट, शाहिद को पकड़कर या सहारा दिए हुए हम लोग बरामदे में खड़े थे। एट दैट मोमेंट, उसी वक्त, लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, उसी वक्त लीनिंग अगेंस्ट द चेयरलेस हॉस्पिटल वॉल, हॉस्पिटल के उदास दीवार पे शाहिद झुका हुआ था। वो झुक करके a kind of rapture descended on शाहिद, तो खुद तो खड़ा नहीं हो सकता था, हॉस्पिटल का दीवार का सहारा लिए हुए था। उस हालत में भी क्या है, a kind of rapture descended on शाहिद, शाहिद पे एक खास किस्म की मुस्कुराहट आ गई, यानी उसमें झुक करके शाहिद मुस्कुरा रहा। a kind of rapture descended on शाहिद, रेप्चर मतलब स्माइलिंग, सो एक खास किस्म की मुस्कुराहट डिसेंडेड ऑन शाहिद, डिसेंड मतलब उतरना, शाहिद को उतरा, यानी पूरे का मतलब हुआ शाहिद स्माइल। When the hospital orderly returned with the wheelchair, Shahid gave him a beaming smile and asked where he was from. When the hospital orderly मतलब प्यून, तो बंदा आया था अभी, वो बंदा जब ये झुक गया, नहीं चल पाया शाहिद की मदद के लिए, लिखते हैं when the hospital orderly returned with the wheelchair, और जब हॉस्पिटल का प्यून दोबारा व्हील चेयर लेकर के वापस आया, तो फिर क्या करते हैं, शाहिद gave him a beaming smile, तो फिर शाहिद मुस्कुराया, and asked where he was from, तुम कहाँ के हो। प्यून से पूछा शाहिद ने कि आप हो कहाँ के, तो जवाब दिया इक्वेडर, ये मुल्क है इक्वेडर का। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, एंड शाहिद क्लेप्ड हिज हैंड्स गिलीफुली टुगेदर, गिलीफुली मतलब हैप्पीली, शाहिद ने अपने हाथों को खुशी खुशी बजाया। स्पेनिश, यानी जो इक्वेडर कहा था उसी का तर्जुमा करते हैं स्पेनिश, इसका मतलब है कि तुम स्पेनिश जबान जानते हो। ही क्राइड, वो चीख करके बोला, एट द टॉप हिज वॉइस, क्राइड और क्राइड के साथ और आगे लग बढ़ा दिया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी जोर से बोला। I always wanted to learn Spanish, मैं स्पेनिश जबान हमेशा सीखना चाहता था। Just to read Lorca, लॉर्का एक ड्रामेटिस्ट और पोएट है, इनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ने का मुतमन्नी था शाहिद, तो स्पेनिश जबान जानने की वजह से थोड़ा सा उसका हौसला और बुलंद हुआ, कहा मैं स्पेनिश सीखना चाहता था। क्यों सीखना चाहता था, क्योंकि लॉर्का वही का था और उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी है वो स्पेनिश जबान में लिखी, उसी को कहें स्पेनिश। ही क्राइड एट द टॉप हिज वॉइस, वो जोर से बोला, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश, हम स्पेनिश हमेशा सीखना चाहते थे। किस लिए, जस्ट टू रीड लॉर्का, लॉर्का को पढ़ने के लिए। लॉर्का कौन है, किताब के आखिरी हाशिए पे देखिए, गार्सिया लॉर्का is a Spanish most deeply appreciated and highly revered poet and dramatist। कैसा है, बहुत ही अजीम पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है, यानी ड्रामा निगाह। समझ में आ रहा भाई लोग? जी सर। ओके, फिर आगे कहता है, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लॉर्का। आगे फिर राइटर लिखते हैं, शाहिद ग्रेगेरियसनेस हैड नो लिमिट। ग्रेगेरियस मतलब होता है सोशल एक्टिविटीज में रहता हो, लोगों के साथ ज्यादा रहने की ख्वाहिशमंद रहता हो, अपने घरों में हमेशा कुछ न कुछ लोगों को बुलाता रहता हो, वैसी अगर क्वालिटी पैदा होती है तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेगेरियसनेस। तो शाहिद के अंदर सामाजिक या लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की सलाहियत बेपनाह थी, उसकी कोई हद नहीं थी। There was never an evening where there wasn't a party in his living room। कोई ऐसी शाम नहीं थी जिस शाम में उसके घर पे कोई पार्टी नहीं होती। So there was never an evening when there wasn't a party in his living room। उनके कमरे में कोई ऐसी पार्टी ना हो तो ऐसी कोई शाम भी नहीं गुजरती, कोई ऐसी शाम नहीं गुजरती जिस शाम में उसके घर में कोई पार्टी ना हो। I love it that so many people are there। अब उसको कोट में कह रहे हैं कि शाहिद क्या कहता है कि मुझे ये बेपनाह पसंद है कि so many people are here, कि बहुत सारे लोग यहाँ हैं।
he told me once, उन्होंने मुझे एक मरतबा कहा था, राइटर कहते हैं शायद ने मुझे बताया था, I love it that people come and there always food. मैं चाहता हूं कि लोग यहाँ आवे और यहाँ हमेशा खाने पीने का सिलसिला चलता रहे। There always food. I love this spirit of festivity. इस तरह की दावत को, इस तरह की पार्टी को मुझे से बेपनाह प्यार है, मोहब्बत है। फेस्टिविटी मतलब पार्टी, इनविटेशन। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू डिप्रेस। इससे क्या होगा कि लोग जब आएंगे हमारे घरों पर रहेंगे, तो जब जितनी ज्यादा देर तक रहेंगे उतनी देर तक हमको अपने जख्म के बारे में, अपने बीमारी के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू डिप्रेस। फिर मुझे मायूस या उदास रहने का हमको मौका नहीं मिल सकता है, या मुझे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जी सर। ओके, आगे फिर लिखते हैं हिज अपार्टमेंट वाज स्पेशियस। स्पेशियस मतलब जिसमें स्पेस ज्यादा हो। तो जिस मकान में स्पेस या खाली जगह ज्यादा होगा वो मकान कैसा होगा? बड़ा मकान होगा। तो हिज अपार्टमेंट वाज स्पेशियस, उनका मकान जो था बड़ा सा था या खुला खुला था। एन एरी स्प्लिट लेवल, स्प्लिट लेवल मतलब कई मंजिला था, और हवादार कई मंजिला बना हुआ था। ऑन द 7th फ्लोर ऑफ अ न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग, रिनोवेटेड मतलब कंस्ट्रक्टेड या मॉडिफाइड, और 7वीं मंजिल जिसको नए तरीके से बनाया गया था, उसी मंजिल पे उनका अपार्टमेंट था या उनका रूम था, उनकी रिहाइश थी। देयर वाज अ कैवर्नेस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर। कैवर्नेस मतलब ह्यूज, बड़ा, और टॉप फ्लोर पर एक बड़ा सा स्टडी रूम था। and a wide terrace that provided a magnificent view of Manhattan skyline across the East River। और टॉप फ्लोर पे क्या था? स्टडी, बड़ा सा स्टडी रूम था, और कहते हैं वाइड टेरेस, और एक बड़ी सी छत थी। इस छत पे क्या होता था? प्रोवाइडेड अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ मैनहट्टन स्काईलाइन अक्रॉस द ईस्ट रिवर। ईस्ट रिवर के पार, यानी मगरबी नदी के पार, मतलब उस बिल्डिंग के मगरब के साइड में नदी बह रही होगी, तो कहते हैं ईस्ट रिवर, मगरबी नदी के पार मनहट्टन के उफुक में उम्दा मनाजिर पेश करता था। यानी वहां से ईस्ट रिवर में, ये ईस्ट रिवर के जानिब मैनहट्टन, मैनहट्टन शहर का नाम है, मैनहट्टन के उफुक का एक उम्दा मंजरनामा पेश करता था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पेश मतलब सकफ, छत। प्रोवाइडेड अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट मतलब उम्दा, व्यू मतलब मंजर। शाहिद लव दिस व्यू ऑफ ब्रुकलिन वाटरफ्रंट स्लीपिंग लाइक अ घाट इनटू द ईस्ट रिवर। ईस्ट रिवर में घाट के तरीके से ब्रुकलिन शहर में पानी जमा हुआ या पानी बहता हुआ का मंजर से शाहिद लुत्फानंदोज होता था। और साथ साथ क्या होती थी? पानी का मंजर भी सामने में आता था, पानी बहने का। अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मनहट्टन, मनहट्टन के रोशनी में, ग्लिटरिंग मतलब चमकदार, लाइट मतलब रोशनी, चमकदार रोशनी का मतलब क्या होगा? बहुत रोशनी, बहुत तेज रोशनी में। तो मनहट्टन की तेज रोशनी में ईस्ट रिवर के अंदर, ईस्ट रिवर में घाट के तरीके से बहते पानी के ब्रुकलिन भी जगह का नाम है। सो बहते हुए पानी, ब्रुकलिन में बहते हुए पानी के मंजर को से मोहब्बत करता था या उससे लुत्फानंदोज। The journey from foyer of Shahid building to his door was a voyage between continents। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट मतलब बर्रे आजम। बर्रे आजम समझते हो? जी जी सर। अब देखिए कितना मुबालगा किया इसने। फोयर मतलब होता है कोई भी रूम हो, रूम कमरे के सामने जो बरामदा है, उस बरामदे को फोयर कह सकते हो, यानी बिल्कुल रूम का जो दाखला है। वोयेज का मतलब होता है एक सफर। तो ये क्या कह रहे हैं? जर्नी फ्रॉम द एयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग,
जिस कमरे में शाहिद रहता था, उस शाहिद के कमरे की बरामदे से उसके मेन घर के दरवाजे तक का सफर क्या था? वाज ह्यूज बिटवीन कॉन्टिनेंट, बर्रे आजमों के माबैन सफर करने जैसा था। कितना बड़ा किया, इसका मतलब इशारा क्या करना चाहते हैं कि घर बड़ा सा था उनका, मेन डोर से और मेन डोर के बाद, इन मेन एंट्री के बाद जो जहां उनका रूम था वहां तक आने में लंबा वक्त लगता था। उसी को ताबीर कैसे किया इन्होंने? जर्नी फ्रॉम द फोयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर, शाहिद के कमरे के दाखिले से उसके मेन एंट्री या मेन दरवाजे तक बर्रे आजमों के माबैन सफर करने जैसा था। On the way up, the rich fragrance of Rogan Josh and Haq would invade the door, grey interior of the elevator. एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, चढ़ना ऊपर। उसके साथ एक तो ये दूरी बता दी, और दूरी के साथ क्या 7वीं मंजिल पे जाना था इनको, तो कहता ऑन द वे अप, और ऊपर जाने के रास्ते में द रिच फ्रेगनेंस ऑफ रोगन जोश। रोगन जोश इससे पहले गुजर चुका था। क्या था ये? वन टाइप ऑफ फूड था कश्मीरी। तो ये अमेरिका में जा चुके थे, ये यूके में है ना। ये यूके में जाने के बाद भी रोगन जोश का खाना जो कश्मीर में बनता था, इसका एहतमाम वहां भी करते थे। तो कहते हैं कि रोगन जोश और हुक का उम्दा खुशबू ऊपर के जाने के रास्ते में वुड इन्वेड द डोर, बिखरता था। ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, लिफ्ट के तारीख हिस्सों में। ग्रे इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदरूनी हिस्सा, तो लिफ्ट के अंदरूनी तारीख हिस्से में रोगन जोश और हाक के उम्दा खुशबू बिखरे रहते थे। Against the background of the songs and voice that were always echoing out of his apartment, और साथ ही साथ क्या थे? Against the background, और अंदर से, of song और voices, नगमों और आवाज, मुख्तलिफ किस्म की आवाज हमेशा आती रहती थी। कहाँ से? आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, उनके अपार्टमेंट या उनके कमरे से। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड, यहाँ तक के उनके कमरे का जो डोर बेल था, वो डोर बेल बजाने पर भी क्या होता था? ऑडली म्यूजिकल साउंड, बदल बदल को उसमें मौसीकी आवाज निकलती। एक मरतबा दबाया तो कुछ और आवाज आती, दोबारा दबाया तो कुछ और आवाज आती। तो इवन द रिंगिंग ऑफ द डोर बेल, यहाँ तक के उनके डोर बेल की जो बजने की आवाज थी, उस बजने की आवाज में भी मुख्तलिफ तरह के मौसीकी का साउंड शामिल था। सडनली शाहिद वुड अपीयर फ्लिंकिंग ओपन द डोर। फ्लिंकिंग ओपन द डोर का मतलब जल्दी से कोई दरवाजा खोलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? शाहिद वुड अपीयर, शाहिद दिखाई दिया। फ्लिंकिंग ओपन द डोर, झटके से दरवाजा को खोलकर, रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हीट इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर। न्यूयॉर्क के ठंड फिजा में हींग की खुशबू बिखेरते हुए, ग्रेट क्लाउड ऑफ हींग की खुशबू बिखेरते हुए, इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर, न्यूयॉर्क के ठंड फिजा में वो बाहर दरवाजा को झटके से खोल करके बाहर आया, और क्या कहता है? हाउ नाइस, ना अच्छा है। ही वुड कराई, आवाज दे के बोला, क्लैपिंग हिज हैंड, अपने हाथों को थपथपाते हुए, हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम। कितना अच्छा हुआ कि उसको लिटिल मुस्लिम कहा कि तुम यहाँ मुलाकात के लिए आ गए हो। इनवेरेबली देयर हैड बीन सम हाफ डजन और मोर पीपल कहता है। अब उसके साथ शाहिद कहते, वो राइटर कहता है इनवेरेबली, हमेशा। वेरिएबल का मतलब बदलना होता है, जो ना बदले उसके लिए हमेशा, लगातार। देयर हैड बीन सम हाफ डजन और मोर पीपल, या हमेशा 6 या 6 से कुछ ज्यादा आदमी हमेशा रहते थे, अंदर पड़े रहते थे। वो आदमी कैसे थे? पोएट होते थे, स्टूडेंट होते थे, राइटर होते थे, कुछ उनके रिश्तेदार होते थे। एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी, और उनके किचन की हालत क्या थी कि किचन में कोई ना कोई या तो खाना बनाता रहता था, या चाय बनती रहती। Almost to the every end, even as his life was being consumed by his disease, तकरीबन उनकी आखिरी जिंदगी तक, क्योंकि कहते यहाँ तक कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो रही थी। तो कहते his life was being consumed, खत्म हो रही थी किससे? by his disease, उनकी बीमारी की वजह से।
He was the center of the perpetual convener. हमेशा लोगों का मरकज बने हुए थे. An endless मेला of talk, laughter, food and of course poetry. और हमेशा वहाँ गुफ्तगू की, हंसी मजाक की, खाने पीने की, यहाँ तक आप अशार पढ़ने पढ़ने सुनने की क्या लगा रहता था, वहाँ मेला लगा रहता था. यानी ये काम होना चाहिए. समझ में आया भैया? जी सर. जी सर. ओके, तो इसको आप रिपीट कर ले आप, इंशाल्लाह इसके बाद आगे पढ़ते हैं. फिर कंप्यूटर के दर्स में आ रहा है. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.